Okay, so good morning students. So today we are going to make a small video on curse the strangers, right? Before starting this video, let me share with you, if you don't like the quality of this video, right, I will apologize to you that because I am not that kind of person who focus so much on the quality. I want to deliver the content to my audience, right? क्वालिटी में उतना फोकस करने से हम अपना एक वैल्यूबल टाइम खो देते हैं. एवरीबडी नोज के एडिटिंग करना बहुत इजी है. हम की बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑनलाइन, राइट, उसमें जाके हम इजीली एडिटिंग कर सकते हैं और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ऑल, राइट. मेरा इंटरेस्ट रहता है कि अपने ऑडियंस को क्वालिटी देने का, राइट, क्वालिटी इन द कंटेंट. So whatever I am speaking, if you listen it carefully, you will understand the topic for which you have opened this video, right? Please, I again apologize for the quality, right? Okay, so let me start this chapter. This chapter is about curse interviews the stranger. Let me summarize this chapter for you. Actually, there was a small village in the England, right? In that village, there was a hotel, right? Hotel by the name Coach and Horses Inn. In that hotel, one strange man came and he was living, right, in one of the room of that hotel. That strange man was strange in his appearance, right? He used to wear the white clothes, like his entire body was covered by the white bandage, right? Even his arms, even his face, even his legs, right, body, stomach, everything was covered with the white bandage except his pink color nose. That was not covered with the white bandage. Can anybody guess that why it was not covered with the white bandage? Yes, you are right, so that he can breathe. Okay, so villagers were very curious to know how is this strange man living here, right? Of course, he used to wear the goggles as well, right, black colors goggles, right? Let me show you that man in the picture or in this book. So this is a picture of that man, right? You can see this entire bandages are covered in his body. He is wearing a black color goggle, right? And so villagers were very curious, right? They were curious to know whether he is a robber, whether he is a thief, right? Has he done something wrong, right? He is hiding himself from the police. So what's the matter, right? And due to this curiosity, one person who was basically a doctor by the name Cuss, he decided to meet that strange man, right? He decided to meet that strange man and he decided that I will try to find out why he is appearing in such a manner, right? So one day he decided to meet that man and he went to the hotel hotel in which he was staying, Coach and Horses Inn, and right, and he knocked the door and the door was opened by that strange man, right? But when during the course of their conversation, right, the Cuss who decided to meet that strange man, he left the discussion and suddenly went running to his friend by the name Bunting. Let me show you the photo of his friend Bunting. He is Bunting, right, who is sitting here, right? He is the Cuss friend, right? The vicar of He's, village. yeah, he is also called the vicar of village, right? Who is vicar? Vicar is basically priest of the village, right? In England, we used to call vicar, right? He straight away ran out of the hotel and went to his friend Bunting and he described the entire conversation, entire incident which happened with that strange man.
So now let me start this story, right? How this story is being told to you, right? And let me explain you each line by line. So the story started from the place when he came to meet his friend, right? Bunting. Am I mad, Bunting? Now who is Bunting? Bunting is Cuz's friend, right? Cuz's friend who is priest of the village. Right? Cuz began abruptly. Abruptly means he suddenly knocked the door. He suddenly opened the door, right? And he said to the Bunting, "Am I bad, Bunting? Right? Do you think that I am a mad?" As he entered the shabby little study, "Do I look like an insane person? क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूँ?" ठीक है, क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूं? ये किसको बोल रहा है जाके? वो अपना एक्सपीरियंस किसके साथ शेयर कर रहा है? विद हिज फ्रेंड बंटिंग. एंड हिज फ्रेंड सेड, व्हाट हैपेंड? सेड द विकर. ठीक है, क्या हुआ? तुम मुझे बताओगे हुआ क्या तुम्हारे साथ? दैट मैन एट द इन. ठीक है, वो आदमी जो वहां होटल में रह रहा है. ठीक है, फिर उसका फ्रेंड बोलता है, वेल, हाँ तो क्या हुआ? कस टोल्ड हिम अबाउट हिज एनकाउंटर विद द स्ट्रेंजर. कस उसको बताता है पूरी बात जो उस स्ट्रेंजर के साथ हुआ है. जब वो उस स्ट्रेंजर के साथ मिला है तो क्या क्या होता है वो पूरी बात उसको जाके बताता है. आई वेंट इन, ही गैस्प्ड एंड टोल्ड हिम आई हैड हर्ड ही वॉज इंटरेस्टेड इन साइंटिफिक थिंग्स. राइट? जब मैं अंदर गया मैंने उसको बताया कि मैंने सुन रखा है कि आप कुछ साइंटिफिक चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं. आई आस्क्ड हिम इफ ही वॉज रिसर्चिंग ऑन एनीथिंग. क्या आप किसी चीज में रिसर्च कर रहे हैं? ही सेड ही वॉज रीडिंग अ वेरी वैल्यूबल प्रिस्क्रिप्शन व्हेन अ ड्रॉट ऑफ एयर लिफ्टेड द पेपर एंड इट लैंडेड इन द फायर प्लेस. बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, स्विश, इट वॉज whisked up the chimney. Just at that point, to illustrate his story, out come his arm. Right? तो मैंने उनसे, वो कस बोलता है कि मैं उसके पास गया, मैंने उससे पूछा क्या आप कुछ साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो? तो उस आदमी ने मेरे को बोला हाँ मैं साइंटिफिक रिसर्च कर रहा हूं. जब मेरे को वो ये बोल रहा था तो उसके हाथ में कोई प्रिस्क्रिप्शन था. वो हो सकता है वैल्यूबल कोई प्रिस्क्रिप्शन होगा, कोई काम का प्रिस्क्रिप्शन होगा जिसे वो पढ़ रहा था. अचानक एक हवा का झोंका आता है, ड्रॉट ऑफ द ईयर, हवा का झोंका आता है. उसके हाथ में जो पेपर था वो उड़कर एक फायर प्लेस के पास गिर जाता है. एक फायर प्लेस के पास गिर जाता है. बिफोर ही कुड डू एनीथिंग, जब वो उसको उठाने के लिए उठाने से पहले ही वो पेपर दोबारा से उड़कर चिमनी तक चला जाता है. अब अपने पॉइंट को समझाने के लिए वो अपना आर्म बाहर निकालता है. अब असली स्टोरी का एक ट्विस्ट शुरू होता है. वेल सेड बंटिंग. हाँ तो इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, वो कोई चीज बताने के लिए अपना हाथ बाहर निकाल रहा है, इसमें कौन सी नई बात हो गई? अब आता है असली ट्विस्ट. नो हैंड, जस्ट एन एम्प्टी स्लीव. नहीं भाई बंटिंग, वो हाथ था ही नहीं उसके अंदर, वो तो सिर्फ एक एम्प्टी स्लीव थी, सिर्फ एक बाजू थी जो उसने उठाई थी. आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं, आई कुड सी राइट डाउन टू द एल्बो. मैं एल्बो तक देखने की कोशिश करा उसके. राइट? देयर वॉज अ ग्लिमर ऑफ ब्राइट लाइट शाइनिंग थ्रू अ वेयर टियर ऑफ द क्लोथ. ठीक है, और लाइट्स वहां तक जा रही थी. गॉड gracious, I said. Then he stopped. He stared at me through those black goggles of his and then at his slave. जब मैं उसको हैरानी से देख रहा था तो उसने भी, वो भी समझ गया कि ये मेरी एम्प्टी स्लीव को देखकर हैरान हो गया है. राइट? वो मेरे को घूरने लगा ब्लैक गॉगल से, और जब उसने ब्लैक गॉगल से ये भी देख लिया कि ये मेरी एम्प्टी स्लीव देख के सरप्राइज हो रहा है. तो अभी तक का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? उस आदमी ने जब अपनी पैंट की जेब से हाथ निकाला तो और उस हाथ को कुछ ही चीज को समझाने के लिए जब इशारा करा तो उसमें हाथ नहीं था, सिर्फ एक एम्प्टी स्लीव थी, सिर्फ एक एम्प्टी स्लीव ही सामने आई. दैट्स ऑल. ही नेवर सेड अ वर्ड.
जस्ट ग्लेयर्ड एंड पुट हिज स्लीव बैक इन हिज पॉकेट। ठीक है, इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला, इसके बाद उसने कुछ नहीं बोला और अपनी स्लीव को अपनी पॉकेट पे वापस रख लिया। आई वॉज सेइंग, सेड ही, दैट देयर वॉज द प्रिस्क्रिप्शन बर्निंग, wasn't I? ठीक है, आई वॉज सेइंग, सेड ही, फिर दैट देयर वॉज द प्रिस्क्रिप्शन बर्निंग, wasn't I? फिर वो क्या बोलता है, मैं क्या कह रहा था, प्रिस्क्रिप्शन ही तो जल रही है, मैं थोड़े ना जल रहा हूं, छोड़ो जलने दो, मैं नहीं उठाता उसको। ठीक है ना, ताकि वो स्ट्रेंज आदमी जो है वो अपना सस्पेंस नहीं खोलना चाहता था उस कस के आगे, राइट। इसलिए बोलता है जलने दो उस प्रिस्क्रिप्शन को, मैं थोड़े ना जल रहा हूं, जलने दो भाई, जल रही है जलने दो। ठीक है, हाउ कैन यू मूव एन एम्प्टी स्लीव लाइक दैट, आई आस्क्ड। कस बोलता है फिर मैंने उससे पूछा, तुम अपनी एम्प्टी स्लीव को ऐसे कैसे मूव कर सकते हो। एम्प्टी स्लीव, यस, आई सेड एन एम्प्टी स्लीव। It is an empty sleeve, is it? You saw it was an empty sleeve. He stood up right away. वो क्या बोलता है, empty sleeve? तुम्हें ये empty sleeve दिखाई देती है? तुमने कोई empty sleeve देखी है अभी? ठीक है, और वो गुस्से में खड़ा हो जाता है। मैं भी खड़ा हो जाता हूं। I stood up too. मैं कौन है? कस। He came towards me in 3 very slow steps and stood quite close. I stood still, counting minutes. Then very quietly he pulled his sleeve out of his pocket again and raised his arm towards me as if he would show it to me again. He did it very very slowly. I looked at it. ठीक है, वो खड़ा हो जाता है, वो धीरे धीरे मेरे पास आता है, बहुत फिर देन वेरी क्वाइटली, ठीक है, वो अपनी स्लीव बाहर निकालता है और अपना आर्म मेरी तरफ रेस करता है। ठीक है, would show it to me again. He did it very very slowly. I looked at it. Well, I said, clearing my throat, there is nothing in it. और फिर मैं उसको बोलता हूँ, हाँ तुम्हारे हाथ में, इसमें तो हाथ है ही नहीं, तुम ये कैसे उठा पा रहे हो अपनी स्लीव को। I was beginning to feel frightened. अब मुझे डर लगने लगा था। I could see right down his sleeve. He extended it straight towards me. उसने अपनी स्लीव बिल्कुल सीधी मेरी तरफ रखी हुई थी। स्लोली स्लोली, जस्ट लाइक दैट, until the cuff was 6 inches from my face. वो धीरे धीरे अपनी स्लीव्स को मेरे पास लेके आ रहा था और अब जब तक उसका जो स्लीव का एंड पॉइंट था, जिसको कफ बोलते हैं, वो सिर्फ 6 इंचेस दूर रह गया था। इट इज स्ट्रेंज टू सी एन एम्प्टी स्लीव कम टू यू लाइक दैट। ये देखना बहुत ही अजीब लग रहा था कि एम्प्टी स्लीव तुम्हारे पास आ रही है। एंड देन वेल, समथिंग एग्जैक्टली लाइक फिंगर एंड थंब इट फेल्ड, निप्ड माई नोज। और उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने अपनी फिंगर और नोज से फिंगर और थंब से मेरी नोज को टच करा है, राइट। और वो उसी का ही आर्म था। बंटिंग, तू मेरी बात को मानो, वो उसका आर्म था, मुझे नहीं दिखाई दे रहा था, मुझे सिर्फ एम्प्टी स्लीव दिखाई दे रही थी। ठीक है, तुम मेरी बात का यकीन करो, राइट। मेरे को ऐसा फील हुआ कि उसने फिंगर से और थंब से मेरी नोज को प्रेस किया है। ठीक है, बंटिंग, तू मेरी बात को मानो। ठीक है, बंटिंग बिगेन टू लाफ। बंटिंग को उसकी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बोलता है, क्या बात करते हो यार, ऐसा नहीं हो सकता है, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। बोलता है कि तुम आज थोड़ा सा स्ट्रेस होंगे, घर जाओ, रेस्ट करो। ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी, ओवर हम काम करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हम ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्त घर जाओ, आज आराम करो, हम कल बात करेंगे। ठीक है, उसे पता था बंटिंग ऐसे ही रिएक्ट करने वाला है। देयर वॉज नथिंग देयर, सेड कस्ट, ऑलमोस्ट श्रिकिंग, यू मे लाफ एट मी, बट आई टेल यू आई वॉज वेरी स्टार्टल्ड। आई हिट हिज कर्व हार्ड एंड टर्न अराउंड एंड रैन आउट ऑफ रूम। तुम हंस लो बंटिंग मुझ पे, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे देयर वॉज नथिंग एट ऑल। आई हिट इज कफ
हार्ड, मैंने अपनी पूरी ताकत से उसके कफ को धक्का मारा, ठीक है ना, जो एल्बो का एंड है, जो हमारे हाथ का हैंड है उसे कफ बोलेंगे, ठीक है ना, और घूमा, टर्न अराउंड, और मैं तेजी से उसके रूम से भागा, मैं इतना ज्यादा डर चुका था। कस स्टॉप्ड, देयर वॉज नो मिस्टेकिंग हिज पैनिक, राइट। कस जो है वो बहुत ज्यादा डर चुका था। ही टर्न राउंड इन अ हेल्पलेस वे व्हेन आई हिट हिज कफ, कंटिन्यूड कस, आई टेल यू इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक हिटिंग एन आर्म। तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैंने उसके कफ को धक्का मारा, बेसिकली कफ क्या चीज होती है, कफ बोलते हैं हम, जो हमारी शर्ट होती है उसका जो आर्म होता है, शर्ट का जो आर्म होता है, ठीक है, उसका जो एंड पार्ट होता है, जहाँ से हम उसको फुल स्लीव्स की जो शर्ट होती है उसको जब हम बटन से बंद करते हैं उसको, तो वो कफ, उसे हम कफ बोलते हैं। तुम यकीन करो, जब मैंने कफ को धक्का मारा, पुश किया, मेरे को ऐसे लग रहा था मैंने किसी आर्म को पुश किया है। एंड देयर वॉजेंट एन आर्म, लेकिन हाथ तो था ही नहीं। देयर वॉजेंट इवन अ गोस्ट ऑफ आर्म, आर्म का भूत भी नहीं था। ये मत सोचो मैं कोई भूत प्रेत की बातें कर रहा हूं, भूत भी नहीं था आम का, ठीक है, कुछ भी नहीं था। मिस्टर बंटिंग थॉट इट ओवर, ही लुक्ड सस्पिशियसली एट कश। इट इज अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी, ही सेड। ही लुक्ड वेरी वाइज एंड ग्रेव इंडीड, ठीक है। मिस्टर बंटिंग ने थोड़ा सा सोचा, फिर उसने मेरी तरफ हैरानी से देखा और बोलता है, बहुत अच्छी कहानी थी दोस्त, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन उसे लग रहा था कि उसे मेरी बात का अभी भी विश्वास नहीं हुआ। इट इज़ रियली सैड मिस्टर बंटिंग विद ग्रेट एम्फेसिस, अ मोस्ट रिमार्केबल स्टोरी। बहुत अच्छी कहानी सुनाई मेरे दोस्त, बहुत अच्छी कहानी सुनाई, राइट, ठीक है। तो दिस इज अ फिक्शन स्टोरी, राइट। और ये फिक्शन स्टोरी किसने लिखी थी? दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनविजिबल मैन बाय एच.जी. वेल्स। अब ये एक्सट्रैक्ट क्या होता है? एक्सट्रैक्ट बेसिकली मीनिंग होता है किसी भी एक पोयम से या बुक से या किसी एक चैप्टर से कोई हम पर्टिकुलर पैराग्राफ या स्टोरी को हम प्रेजेंट करते हैं, उसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट इज अ पोर्शन ऑफ द एंटायर बुक, राइट, और चैप्टर, राइट। सो ये लिखा था किसने? एच.जी. वेल्स ने। एच.जी. वेल इज रिमेंबर्ड फॉर राइटिंग अ फिक्शन स्टोरी। नाउ व्हाट इज फिक्शन स्टोरी? फिक्शन इज बेसिकली एन अनरियलिस्टिक टाइप ऑफ थिंग। वो रियलिटी में नहीं होती है। बेसिकली वो ये स्टोरीज लिखते थे अपने ऑडियंस का, अपने स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, राइट। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। द फर्स्ट क्वेश्चन, that man at the inn, who said these words to whom? Mr. Curse said these words to Bunting. Mr. Mr. Curse said these words to Mr. Bunting. Who was the speaker referring to? Stranger, right. Why had the speaker gone to meet this person? Because he had heard that the Curse had heard that the strange stranger man was interested in scientific things. Very good. Right. How can you move an empty sleeve like that? Who said these words to whom? Curse to stranger. Curse said these words to stranger, right. Audience, here I want to tell you that when I am teaching you this chapter, along with my son who is in class 5, he is also sitting and studying with me, and you can hear his voice in between the videos. When I will be discussing the questions with you, he is also giving the response. So Abhi Dhingra, say hi to my audience. Hello. So hello from Abhi Dhingra, right? Okay. Now let me continue with the story. How can you move an empty sleeve like that? Who said these words to whom? Curse said these words to stranger. Curse said these words to a strange man. Why did the speaker ask the question? Because he cannot see the. Because he cannot see the arm. the strange man arm, right.
what did the other person say in reply? The other person was pretending that, did you saw an empty sleeve? There was an empty sleeve. There was not an empty sleeve. You might be wrong, right? There's nothing in it. Who said these words to whom? Cus said to the strange man. What was he speaking about? He was speaking about the sleeve. Empty sleeve of strange man. How did the listener react to this? Again, the same reply. The listener was not ready to accept that Cus has just saw an empty sleeve. Why did the Cus ask Bunting if he looked like a insane person? Because he cannot believe that He just saw the empty sleeve. How do his words become important in the context of the story? How do his words? Whose words? Cus words. What were the words that he said to Bunting? That, do I look a strange, insane person? Right. Why these words become important? Because he thought that nobody will believe in his words. He was very much sure that even Bunting will not believe that whatever he is saying is correct and is actual. It has happened to him. Right. Why did the Cus interpret the stranger story? Why did the Cus interpret the stranger story? He interrupt the stranger's story when he could not see the arm of the strange man. Right. Did the stranger seem pleased about his interruption? No. No. Why? The strange man was not pleased by the interruption, so he glared Cus from his goggles. Right. So, understood my audience? Right. Did you understood this chapter? Cus and the interview. This entire chapter is a fiction story. This entire chapter we came to learn that what Cus saw was an unbelievable thing. What an unbelievable thing he saw, that an empty sleeve coming out and there was no arm. Understood? I hope you understood this chapter. Right. So I will be continue making the video for you, so that this entire English of class 5 you have a summary for this, and you do not need to go anywhere. This is my small contribution for the children out there. Thank you all. Thank you. Bye.